Hello viewers and welcome to a very special program today. Well, today we will be talking about a very legendary personality from Assam, a poet, a composer, a music composer, a freedom fighter, and above all, a great human being. Well, this country, India, is dotted with myriad of personalities who have left their indelible mark right from before the freedom struggle movement and even today. Well, when we talk about the freedom struggle movement, there were innumerable leaders and contributors and nationalists and freedom fighters who have made their mark towards making this country what it is today, towards freeing the country from the wrath of the British rule. Well, as the freedom struggle movement, as we all know, it encompassed the entire country. So did also in Assam. In Assam also, there were numerous personalities, some known, some lesser known, but then who have contributed significantly towards freeing this country from the yoke of the British rule. One such personality from Assam, a legendary figure, as I said, a poet-composer, is Kamala Nanda Bhattacharya. Now, Kamala Nanda Bhattacharya is a personality from Assam who played a significant role not only during the non-cooperation movement that the country saw, and even in Assam we saw that it had its footprints as well, but he was a poet, he was a composer, a music composer, he was a legendary figure. So today, we are in this midst today, in this program today, a very special edition of this program, and I am being joined by his Kamala Nanda Bhattacharya's granddaughter, Ragini Bhattacharya Chakravarti, and she is here with us to tell about Kamala Nanda Bhattacharya, all his significant contribution, his role, the immense contribution that he has left behind in Assam, and who's still being followed, who's still being revered, whose songs that he has composed, more than 200 songs of his original composition, which is still being sung and which are so ever popular in Assam. So we are today very fortunate to have Ma'am Ragini with us, and we will be talking about her legendary grandfather, and that is Shri Kamala Nanda Bhattacharya. Very warm welcome to you, Ma'am Ragini. Namaskar आपको and स्वागत है आपको इस प्रोग्राम में. We are very fortunate enough indeed जो आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, that is in दूरदर्शन शिलोंग, and आप जो हमें बताएंगे आज आपके grandfather के बारे में जो है Kamala Nanda Bhattacharya. So once again a very warm welcome to you. Thank you so much for your time. Welcome. Thank you. Ma'am, let us go back, थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, क्योंकि मुझे जो पता चला है जो श्री कमलानंद भट्टाचार्य वो एक लेजेंडरी फिगर थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जो he has fought against the British right since 1921, that is during the non-cooperation movement. आप उनके ग्रैंड डॉटर है, बहुत it's a very prestigious honor indeed. चलिए शुरुआत करते हैं उनके बारे में थोड़ा. मुझे हम सब श्रोताओं को, हमने ऑल द व्यूअर्स आउट हियर आल्सो, ज़रा बताइए जो कौन थे ये कमलानंद भट्टाचार्य जो इतने सारे काम छोड़ के गए हैं पीछे. ही इज़ लेफ्ट सो मच ऑफ हिज वर्क बिहाइंड अस. टेल अस व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस पर्सनैलिटी दैट इज़ योर ग्रैंडफादर कमलानंद भट्टाचार्य. एक्चुअली मैंने मेरे ग्रैंडमदर से बहुत कुछ सुना और मेरे फादर से मैंने बहुत कुछ सुना, और हम लोग उनके डेथ के बाद एक्चुअली हमारे घर में पॉलिटिकल लाइन का सब कुछ बंद हो गए, क्योंकि उनकी मदर ने मेरे फादर को ये परमिशन नहीं दिया. एक्चुअली जो कुछ मिलना चाहिए था गवर्नमेंट के तरफ से वो भी नहीं लिया, क्योंकि एक बहुत कम उम्र में वो गुजर गए. और जेल में 56 जेल में कम से कम वो बांग्लादेश में भी जेल में थे 9 months 10 months ऐसे, और घर में रहने को नहीं मिला. और जब मिला था उन्होंने म्यूज़िक
लाइन नाटक ये सब करके, और गवर्नमेंट जब छोड़ के दूसरा कुछ काम किया था, हर समय बिजी थे, घर में नहीं होते थे, और सब मेरे दादी मतलब ग्रैंड मदर दिखते थे, तो सब लेडीज़ के ऊपर सब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते थे, और ये लोग बाहर थे, और उनके एक भाई थे, दोनों एक साथ ये सब करते थे, और घर के सब सामान जला दिया था। और इतना मुझे मालूम है, एक बहुत महंगी चीज़ जो कोलकाता से मंगवाते थे उस समय मेरे ग्रैंड मदर के फैमिली से, वो कुछ भी नहीं छोड़ा था 21 से पहले भी। और उन लोगों ने बहुत ये बाकी बाहर का भी काम किया था, और उनके जो स्टूडेंट्स थे, वाइस चांसलर बाद में हो गए, सब बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने लिखा हुआ आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो ऐसा सुना था कि उन लोगों ने नौकरी भी की और साथ में ये भी छोड़ा भी, थोड़े दिन नौकरी, थोड़े दिन म्यूज़िक, थोड़े दिन नाटक, ये करके चुप चुप के अलग अलग जगह पे वो लोग रहते थे। मिशनरी में भी काम किया था, अलग अलग म्यूज़िक। और जब ये 21 के बाद 30s में उन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना के, कोई सिनेमा हॉल ओपन हुआ, उसके लिए सॉन्ग ये करके लोगों को सबको बिजी रखते थे। अच्छा। तो सोशल इसमें बहुत थे, और वो खुद एक्टिंग भी करते थे, बहुत सारे नाटक उनके हैं। तो सब मैंने अभी डाटा निकाल के सब किया। तो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट देन लेट अस गो बैक अगेन टू श्री कमलानंद भट्टाचार्य, क्योंकि सुनने में आए हैं, जो पढ़ने में भी आए हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर में, हमारे इंटरनेट में। और यू नो, ही वाज एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 15, जब 15 साल उम्र के थे उनके पिताजी गुजर गए, एंड ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ द 7 सिबलिंग्स। उनके और 7 भाई बहन थे शायद, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गए। And then he tried to go and study further studies in Cotton University those days. लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। Yet then he took up a government job. But as soon as Mahatma Gandhi, you know, called ये non-cooperation movement, जब उन्होंने सारे देश में वो आंदोलन छेड़ दिए हैं जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जो हमें अब लड़ना है, we have to fight against the British. श्री कमलानंद भट्टाचार्य also joined in that, क्योंकि उन्होंने भी अपना गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दिया। In fact, I think he was one of the earliest person in Assam. तीन जन थे। Yeah, 3 जन थे। First, yes, he was amongst those 3 early government employees who left their job to join the freedom struggle movement. ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली हमारे सामने एक नाट्य मंदिर है अभी भी, उस समय महात्मा गांधी उसमें आते थे। तो उस समय लेडीज को परमिशन नहीं था कि बुक दिखा के बाहर जाए, तो मेरी दादी मुझे बोल रही थी कि ऐसा करके जाना ही पड़ेगा। सब लेडीज को उधर मतलब जाना ही पड़ता था, और मीटिंग में आगे जाके सबको बैठना था। क्या एडवाइस देंगे, नेहरू भी आते थे बाद में, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में मुझे ये इतना मालूम पड़ा था। ओके। और ये सब आपको आपके दादी लेकिन या उनके कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में भी बहुत सारे थे। ही हैज कंपोज्ड ओवर 200 सॉन्ग्स। उनको बोला जाता है ही इज अ बाउली पोएट। इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने लिखते बहुत सुंदर थे, तो इसलिए कोई दूसरे पोएट, दूसरे लोग बोलते थे उनको, बाउली को भी, मतलब वो लिखने में इतने एक्सपर्ट थे और कंपोजिशन भी बहुत सुंदर थे। वो उस समय एक्चुअली नॉन कॉर्पोरेशन के बाद 26 में, शायद 1926 में, उनके भाई मतलब फ्रेंड के तरह थे, दोनों ही जेल में जाते थे, दोनों ही नॉन कॉर्पोरेशन में वो एक साथ हमारे घर के सामने ही पूरे नौगांव के लोग जलाते थे। तो किसी को हिम्मत नहीं थी इतने सारे काम करने के लिए। जो भी जलाते थे सब बाहर से भी, दूर से भी लोग आके हमारे घर के फ्रंट में। दैट वाज द बॉयकॉट मूवमेंट, क्योंकि वो जो स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट जो आंदोलन छेड़े थे, बिकॉज गांधी जी आल्सो गेव अ कॉल दैट वी हैव टू बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, एंड ही आल्सो burnt his own household goods। एकदम और सब सुंदर सुंदर हमारे घर में। और वो म्यूजिशियन थे ना, सितार, वायलिन, हारमोनियम, सब कुछ, तो वो भी कोई लेके गए थे। और प्लस
वो गैप में वो लोग ये काम करते थे, नाटक टू सामने नाटक टू होते ही थे। और दूसरा ये था कि म्यूज़िक जब भी करते थे, गाना जब भी ट्यून करते थे, नाटक में वो यूज़ होते थे। तभी लोगों ने एक बहुत बड़े, अभी उनके नाम पे स्कूल भी है। अच्छा। मतलब मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे कुछ नहीं है एक्चुअली, इसका कुछ कारण है। मैं अभी सोचती हूँ क्यों नहीं है। तो इनके पीछे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने वाले लोग बहुत थे। गवर्नमेंट जब भी फॉर्म हुआ तो उस समय उन्होंने छोड़ दिया। तो रात रात मीटिंग होती थी, तो मोमबत्ती लगा के, और दिन में भी चुप चुप के मीटिंग, रात को 2 बजे तक मीटिंग होते थे। और तभी मैंने सुना था कि उस समय जो ये कपड़े घर में ये करने के लिए, वीविंग के लिए, मेरे दादी लोग उसमें भाग नहीं लेते थे, लेकिन अंदर ये लोग काम करते थे। लेडीज अपना काम, वो लोग बाहर ये सब काम। तो ये बताने के लिए भी कोई कोई लोग एकदम ग्रुप होते थे। तो अभी भी मुझे मालूम पड़ा कि ये क्यों होता था, लेकिन पीछे बोल के उनको पैसा कमाने का भी एक रास्ता मिलता था। पॉलिटिक्स अभी नहीं है, उस समय भी था। तो ये इसके लिए इन लोगों का काम में थोड़ा थोड़ा मुसीबत भी आता था। लेकिन इनका ये नाम से बाउली, मतलब वो जो जिस तरह से गाना लिखते थे तो इतने सुंदर होते थे। तो वो पैसा नहीं लेते थे उस समय सिखाने के लिए। तो पुराने लोग बोलते थे। तो इनके भाई ने वो जितने भी गाने थे, शायद 70 या 65 उस समय होते थे, तो जाके उन्होंने प्रेस में दिया था, उनके फ्रेंड के प्रेस में। के बाद में वो गुजर गए। उस समय ट्रीटमेंट नहीं था। वो गुजर जाने के बाद प्रेस में ही 1.5 साल वो पढ़ा था वो बुक। अभी इधर रखा है मैंने। तो उसके बाद वो प्रिंट करके भेजा है। और कोई कोई लोगों ने मिल के ऐसा लिखा है कि जनरली हमारे असम में या नॉर्थ ईस्ट साइड में एक तो पोएट, एक तो ट्यूनर, कंपोजर जिसको बोलते हैं, और एक तो गायक, 3 एक साथ नहीं होते हैं। 3, लेकिन ये 3 एक साथ इनका था। ये क्वालिटी ये सबका नहीं होता है। तो वो बहुत बड़े पोएट ने बोल के गए कि इनका तीनों में ये थे, लिखना भी, ट्यून करना और गाना। और प्लस सिखाते भी थे। तो हमने बाद में और कोलकाता जाके उन्होंने बहुत सारे गाने का रिकॉर्ड किया था, नाटक रिकॉर्ड किया था HMV में। और उस समय जो भी था खुद भी गाया था। और उस समय 3.5 मिनट के रिकॉर्डिंग अभी शिलोंग में भी है। शिलोंग में मैंने सुना, शिलोंग से ही मुझे किसी ने उनके रिकॉर्ड के 2 गाने दिए थे बाद में। तो वो अभी गुजर गए। उन लोगों ने जो कलेक्शन करने का जिसका काम रहता है वो किया था। हमारे घर में कुछ नहीं था एक्चुअली। तो उस समय पैसा भी नहीं था, उन लोगों ने काम किया, बस ये हो गया। और मैं सुनती थी। और म्यूज़िक बाद में हमारे घर में सब पॉलिटिक्स का ये ख़त्म हो गया। तो पिताजी ने म्यूज़िक का, दादाजी ने भी उनको लखनऊ भेजा था म्यूज़िक सीखने के, तबला। वो खुद तबला नहीं बजाते थे, इसलिए पिताजी को तबले में डाल के उनको बाहर भेजा था। लेकिन उन्होंने तो मतलब ही वाज आल्सो वेरी गुड इन सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, then I think he सितार, वायलिन, एसराज, right, बांसुरी, फ्लूट आल्सो। एक्चुअली ड्रामा में ज़रूरत होते थे ना। ड्रामा में बाकी ड्रामेटिस्ट उनको बोलते थे कि आपका ही गाना चाहिए हमको, ऐसा करके। लेकिन उनका एक अलग एनर्जी थी शायद। और बाद में उन्होंने ये देख लिया कि ये सब करके कुछ नहीं होता है। तो फैमिली ख़त्म हो गए, उनके फादर टू गए, उसके बाद उनको सब देखना था। उनकी माँ बहुत स्ट्रांग थी। तो वही मैंने सुना था। उन्होंने ये जोड़ के रखा है। नहीं, उन्होंने पूरा घर चलाती थी। वो काम करते थे। बाद में पैसा वैसा सब खत्म हो गया। बैंक में जो था, बैंक बंद हो गए तो इंडिपेंडेंस के बाद में। तो दादाजी ने इसीलिए सब बंद करके पिताजी को म्यूज़िक में डाला। तो तू ये कर। तो पिताजी को बिल्कुल भी बाहर जाने को नहीं दिया। अभी मुझे क्वेश्चन करते लोग क्यों वो नहीं हुआ। एक्चुअली सब गाने रखे हैं, बाकी सब चीज़ रखे हैं। हमारे घर में अभी भी हारमोनियम है, 100 साल पुराना हारमोनियम है। उस समय 7 रुपीज़ का था। अभी भी मैंने निकाल के देखा कि बहुत सुंदर ट्यूनिंग मैं खुद बजाया उस दिन। मुझे बहुत। वो आपके दादाजी के? हाँ, दादाजी के पिताजी को दिया था, छोटा सा हारमोनियम। तो वो अभी ट्यून का ऐसा कुछ नहीं मिलता है, और कभी बाहर भेजा भी नहीं। और वायलिन है, अच्छा, जो उन्होंने बजाते थे। और इसीलिए उस समय तो अलग ही होता था। तो नाटक के सब लोग हमारे घर में होते थे, मैंने सुना है। लेकिन पिताजी के ज़माने में अलग हो गया। 1950 के बाद, 51 में वो गुजर गए। उसके बाद वो हमारे घर में टोटली म्यूज़िक आ गए। तो इसलिए पुरानी म्यूज़िक जितने भी रखने का था उन्होंने किया, लोगों को सिखाया। तो हमने भी बाद में सीखा, हमको सब कुछ। मैं अभी एक बुक बीच में रिलीज़ किया था, उसमें मैंने सब कैसे कैसे मैंने सीखा था,
किस तरह से होता था, कैसा गाना गाना पड़ता है, ऐसे करके Absolutely, because you are also a very noted नहीं, मैं actually बड़ी हूँ। singer. जी जी Right. आप भी तो गाना करते हैं, आपके गाने मैंने सुना भी, बहुत सुर है आपके आवाज़ में, and you have followed the footsteps, I think, of your grandfather. But coming back to your grandfather again, he also, you said, wrote plays, drama भी तो लिखते थे, तो ये सब ड्रामा किसके ऊपर में थे? Like what was the theme of those? अलग अलग होते थे। एक तो नगा कुंवर करके है, अच्छा। वो बहुत फेमस थे। Okay. वो अभी भी लोग बोलते हैं, और बहुत बड़े लोगों ने भी बोला कि इसके बारे में बाहर ये आना चाहिए, लेकिन वो इनके ऐसा टाइम पे उनके डेथ हो गए, ज़्यादा काम करने को उनको नहीं हुआ, लेकिन है। He was in the prime of his youth actually. 56 आज के ज़माने में क्या हाँ, है? उस समय लिखने के टाइम पे मेडिकल कॉलेज में एक्टिंग के लिए लोग वो लेके जाते थे, और बहुत पब्लिसिटी होती थी, लेकिन अभी तो इतने पब्लिसिटी है, फेसबुक ये वो, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, फिर भी होता था। लेकिन बहुत सुंदर ऐसा सुना है हमने। और नाटक में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी उनके बुक ये होते थे, जैसे कोई कोई पोएम के, तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन वो है। तो एक दो कॉपी है 1942 के मूवमेंट के बारे में भी। हाँ, वो क्विट इंडिया के बारे में उस समय भी जो लोग गुजर गए थे उनके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखे हैं। तो बाद में महात्मा गांधी को वो ये किया है, अर्पित किया है। अच्छा। वो बुक निकले, तो फिर बाद में अभी कोई लोग बोल रहे कि पूरा उनका निकालने का है, तो मेरे लिए एक स्टेप बाय स्टेप काम करना अच्छा है। लेकिन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क नाउ, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनके बारे में। यू हैव नाउ ब्रॉट आउट अ बुक ऑफ नोटेशन उनके गाने में, राइट? बिकॉज नोटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। गाने तो सब लोग लिख लेते हैं, राइट? एवरीबडी राइट्स सॉन्ग्स, बट देन द नोटेशन, हाउ द म्यूजिक विल बी, वो तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। और आप ये काम, यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क ऑन राइटिंग नोटेशन ऑफ हिज सॉन्ग्स. Tell us a little bit, because you have a book also there. जी. Tell us about this book that you have, the book of notation. एक्चुअली मैं तो क्लासिकल फील्ड से हूँ, और बचपन से मुझे बहुत, मैंने दादाजी का बहुत गाना नहीं गाया था, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इनका वो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था, तो किस तरह से गाते हैं, टोटल फोक भी है, राग भी है। अभी समझ में आया रिसर्च करने के बाद, उस समय इतना नहीं मालूम था। तो टैक्टफुली बहुत अच्छी तरह से गाना पड़ता है, और हाई पिच होते थे। तो इसका पूरा ये आजकल के जैसे ये नहीं होता है, तो पूरा कंप्लीट नेचुरली गाना पड़ता है। तो मैंने 2-4 गाना सीखती थी। बाद में मुझे जब भी मैं क्लासिकल में डेवलप किया, और सब बाहर के आर्टिस्ट भी मुझे, पिताजी को बोलते थे कि इसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिखाना चाहिए, तो मैं इसलिए वो सीखती थी। बाद में सीखते सीखते मेरा मूड भी एक अलग ही था, तो घर में म्यूज़िक होता था। तो धीरे धीरे जब बड़ी हो गए, बाद में शादी के बाद एक्चुअली मुंबई गई मैं, तो मुंबई में मुझे अच्छा सीखने को मिला। सीखने के बाद मुझे यहाँ से बोला गया है कि आप हमेशा बाहर का काम करने से नहीं चलेगा, असम का काम करना है। तो ये इनके बारे में बोला है, तो ये गाने ये करना है। तो मैंने पहले तो वहाँ पे पूछा, बहुत कुछ बोल दिया था उन लोगों ने, रेट वगैरह, तो मैंने खुद ट्राई करूँ। तो एक्चुअली हमारा क्लासिकल में करना भी पड़ता है, लिख के कुछ नहीं देते हैं। मैं खुद लिख के सीखती थी, और ऐसे ही निकालती थी, इंटरेस्ट था मेरा। तो फिर बाद में मैंने गाने का इनका देखा कि एकदम ईजी है। तो एक तो डरती थी, लेकिन वो एक एक्चुअली रेस्पेक्ट के हिसाब से, लेकिन एकदम आसानी से हो गया। तो एक ऐसे करते करते मुझे इंटरेस्ट बैठ गया, बहुत सारे गाने मैंने बना दिए। तो अभी मैंने उसमें से आधा भी नहीं लिया है, लेकिन हाँ। तो इफ यू कैन जस्ट शो अस दिस बुक मैम, ये जो आपने किताब निकाले हैं, इसका नाम क्या है? आप अगर ये एक्चुअली उनका एक सबसे फेमस जो गाना है, एक बहुत बड़े पुराने लोगों ने, साहित्यकारों बोल के गए हैं कि दूसरा कुछ नहीं लिखने से भी ये गाने से वो मतलब नाम, हाँ, फेमस है, क्योंकि ये गाना गांव-गांव में गाते थे। तो ये एक्चुअली बिल माने लेक, तीरे बिराय, बिलत तीरे बिराय, तीरे बिराय माने चिक 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 चक चक, जो चमकता है, जो चमकता है, तो वो है। तो वो इतना सुंदर कंपोजिशन है। तो चांद के साथ किया है, जो इसमें घूमते हैं, ये सूरज के साथ किया है, कंपेयर किया है, तो वो लोटस के बारे में। तो इसीलिए ये गाना बहुत फेमस है। उस समय भी किसी ने बोला कि इसी गाने से होगा, और सब लोग गाते थे। अभी भी पुराने लोग इसको गाते हैं बाय हार्ट सबको। तो इसलिए इसका नाम देने का मुझे ये हुआ। और ऐसे भी इससे बहुत सुंदर सुंदर बहुत गाने हैं, लेकिन ये फेमस है इसीलिए। तो इट इज आफ्टर द नेम ऑफ दैट। और एक्चुअली इसके भी अंदर राग है,
लेकिन वो राग ऐसे दिखता नहीं है, मतलब लोगों का, आम आदमी को इसको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो राग जानते हैं उनको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया। क्या राग दिए हैं इसमें? ये एक्चुअली पहाड़ी बोलते हैं, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड में पहाड़ी राग बहुत यूज होते हैं और धानी राग होते हैं। और लखनऊ में पिताजी थे तभी भी आसाम के गाने सुनते थे, आसामीज गाने, तो बोले कि तुम्हारे गाना गा के सुनाओ। तो कोई भी लैंग्वेज हो, एक्चुअली गा के, मैं भी आसामीज गाती हूँ वहाँ पे। तो जेल में जब भी थे वो गाना लिखते थे, एक जेलर के ऊपर उन्होंने एक स्टैंजा लिखा था, और जेलर जैसे कैदी को किस तरह से तकलीफ देते थे तो उसके ऊपर नहीं, उनको नहीं देते थे, वो लिखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टैंजा उसमें लिखा है। वो लेकिन ट्यून करने के टाइम पे उन्होंने वो नहीं रखा, क्योंकि आगे जाके 100 साल के बाद 200 साल के बाद बच्चे को क्या लगेगा। तो जेलर का नाम भी है, बांग्लादेश सिलेट में जब थे, जॉन बुल जेलर थे। तो वो गाना मैं गाती थी, उसका मीनिंग बोल के कंपेयर करके मुंबई में। तो लोगों को जो समझ में, जिसको जर्नलिस्ट, जो म्यूजिक क्रिटिक है, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो पर्टिकुलरली मुझे कवि सम्मेलन में बुलाया भी था कि उनका तुम गा के सुना। तो मैं क्या करूँ, कवि सम्मेलन में मेरा कुछ काम नहीं है, फिर भी मैंने ऐसा करके असम के ऊपर कुछ गीत है वो किया, और प्लस नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उन्होंने अलग अलग, सब मणिपुरी, नागालैंड, सब के बारे में उन्होंने लिखा है। तो कितना अच्छा था उस समय का। I mean, he was such a broad-minded personality, क्योंकि because he just did not just center around Assam. He spoke about so many tribes of the Northeast. आप बता रहे हैं जो नागालैंड के ऊपर, मिजोरम के ऊपर, मेघालय के ऊपर में भी शायद लिखे हैं, for all you know, because यहाँ पे तो आते थे, यहाँ पे आते थे। नागालैंड का मुझे, मतलब दोयांग नदी है ना, नदी दोयांग के ऊपर एक गाना है, तो शायद वहाँ पे रहते थे ये लोग। और ये जो जंगल में रहते थे ना, ये शायद इसीलिए जंगल में रहते थे, चुप चुप के ये लोग शायद काम का, हमको इतना लिख के पढ़ के किधर से भी मुझे मालूम नहीं। How many notations have you? यहाँ पे 24 सॉन्ग्स मैंने लिए हैं। एक्चुअली मैं शिलोंग में थी, तो मेरे हस्बैंड के थ्रू मैं यहाँ पे थी 2 साल। तभी उस समय बैठ के, शिलोंग का ऐसे भी एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे मुझे काम करके बहुत मज़ा आता था। बैठ के मैंने किया, एकदम पर्टिकुलरली बहुत सुंदर मैंने लिखा है। लिख के मैं गुवाहाटी, शिलोंग नज़दीक होता है, तो इसलिए गुवाहाटी में जाके काम किया। और बाद में मैंने प्रीफेस वगैरह, और मुझे बड़े बड़े लोगों ने बोला कि तुमको किस तरह से मालूम हो, तुम्हारा बोलो, तो इसलिए मैंने बोला है। और मैंने एक्चुअली मैं म्यूज़िक का जो मेन ग्रामर होता है उसको मैंने छोड़ा नहीं। ये हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। आप असमीज़ हो, खासी लैंग्वेज हो, कुछ मणिपुरी हो, कुछ भी हो, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आगे के लिए कितना डेवलप होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन आगे के लिए जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में देख के बजाते हैं, तो इस तरह से मैंने काम किया। जी, बहुत सिग्निफिकेंट, और क्लासिकल है भी, इसीलिए करना पड़ता है। तो मैंने गा के देखा, और जैसे हमारा बोलना और लिखना अलग होता है। जैसे हम लोग बोलने में सॉफ्ट होता है, लिखने में वो आप सेंस नहीं कर सकते उसको, तो इसलिए वो थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके मैंने ऐसा लिखा है। नीचे नोटेशन, मैंने नोट दे दिया कि इसको ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करके। एंड यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ this great personality Kamalananda Bhattacharya is that he was also a writer, ना, क्योंकि वो तो translation बहुत किए हैं। No, he translated many English and Bengali. Shakespeare drama. English and Bengali works into Assamese, so that it can be the greater public उनको समझे, Assamese में समझे, तो उनके लिए ये काम भी। वो अभी एक भी नहीं है। नहीं है। वो क्या है, जिसने निकाला था वो भी कंपनी बंद हो गए थे, लेकिन किसी ने बोला कि वो कहीं पे मिलेगा ऐसा, तो अभी नेशनल लाइब्रेरी, बहुत काम बाकी है, बहुत है, टू कलेक्ट। अच्छा लगता है, लेकिन वो जो लोग काम करते थे, तो सुन के इतने, क्योंकि आप तो यू कंडक्ट अ नंबर ऑफ वर्कशॉप्स आल्सो मैम। व्हाई आर यू कंडक्टिंग दीज वर्कशॉप्स? टू कीप these legendary personalities, memories and his contribution alive, right? उनके जो इतने सारे contribution हैं, जो younger generation को मालूम चले, it should continue to live. Tell us about the workshops that you conduct. वर्कशॉप एक्चुअली असम में बोला गया था कला क्षेत्र के तरफ से, तो उन लोगों ने अरेंज किया था गवर्नमेंट के तरफ से। 2-3 साल उन लोगों ने किया, बाद में वो इंटरेस्टेड ऐसे कोई थे नहीं, तो मैंने खुद किया। और प्लस ये जो गाना, जो फेमस गाने, इसको लेके मिसयूज हो गए ये, तो एक्चुअली वो एकदम अलग रिमिक्स कर दिया, मतलब जैसा। तो वो लोग क्या सोचते थे कि कोई गाने वाले हमारे घर में नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं बाहर मुंबई में रहती थी,
तो मैं एक्चुअली ये गाना मैं गाती नहीं थी, लेकिन बाद में मैं मजबूर हो गई तो गाने के लिए। दूसरी बात क्या है, एकदम सिंपल गाना कर रहे हो, एक दो लाइन अगर सुना देते तो अच्छा नहीं, होता ये है, एक्चुअली सिंपल है। लेकिन मुझे बहुत सिंपल वाला भी इतना ये नहीं है, मैं थोड़ा मूड से गाती हूँ। और प्लस उस समय वो जो काम कर दिया तो सब पुराने लोगों ने लेटर लिखा मेरे फादर को कि ये क्यों हुआ, तो क्यों हुआ तो कैसे बोलेंगे। पहले लोग बोलते थे कि अच्छा काम होगा, लेकिन वो स्टूडियो में जाने के बाद उसका चेंज हो गया, अपनी मर्जी से काम किया था। तो मैंने बाद में सोचा नहीं, इसको ठीक ढंग से इसको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में 3.5 मिनट में एक गाना होता था। 3.5 मिनट का गाना इतना लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने नोटेशन करके किस तरह से गा सकते हैं, इजीली गा सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है कि वो सुना है वो ही होगा, लेकिन नहीं, अभी हो गया। जो मेरा काम है मैंने किया। और ऐसे मैंने वर्कशॉप का ये सोचा कि वर्कशॉप होने से लोग आते हैं, सीखते हैं। And this is your effort to keep the memories, to keep the contribution of your grandfather alive. क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं पुराने ज़माने के जो हम जो modern days में भूल जा रहे हैं। बिल्कुल। You know, we are forgetting our legends, you know, the great contributions that they have left behind, but we ought to remember them. And through your magnificent work, this is the शुरुआत है आपके. I'm sure that in the days ahead, you will continue to keep the memories and the contribution that your grandfather has done, that is Sri Kamalananda Bhattacharya, alive amidst the youth, and वो आप propagate करेंगे. Thank you so much, ma'am. You know, we can go on and on talking, because I know he was also a great nature lover. वो खुद भी बहुत fit होके रहते थे, right? He used to wear very nice clothes and he used to groom himself very well. तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बात कर सकते थे शायद, लेकिन समय का कमी है, and we are in short of time. But then आपने जो इतने सारे बातें किए हैं, yes. इसमें बोलूँगी, ये जो धोती वो पहनते थे, इनका पैर नहीं दिखता था, ये सब स्टूडेंट्स कॉपी करते थे। ये मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था, वो तो अभी सब गुजर गए, तो बोला था। और एक बात है, वो साइकिल से जाते थे, परफ्यूम लगाते थे। परफ्यूम ऐसा है 10 मिनट तक वो रास्ते में मालूम पड़ता था, लोग बोलते थे कि अभी यहाँ से कमलानंद गए। तो ऐसे लोगों को पता, इतना हमको सुनने को मिला। शौकीन थे बहुत और ये बहुत स्टाइलिश थे। और कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर भी कभी और देखने में भी सुंदर थे। तो ये सब हमको सुनने को मिला। Right. I really hope that you'll continue to keep his memories alive, and you'll continue to contribute. You know, you yourself, you're a singer, so आपके गाने के माध्यम से उनके गाने भी हमेशा रहेंगे हमारे बीच. Thank you so much for telling us about this great personality who contributed so massively in the field of music, in the field of writing, in the field of composition, in the field of composing poems, drama, etc., etc. And over and above that, of course, he was a freedom fighter as well. Thank you, ma'am, for sharing the memories. Well, then, viewers, that's the legendary personality that we have just brought him alive today. And his name was, of course, Kamalananda Bhattacharya. I hope you've enjoyed this conversation with us today. Thank you so much for tuning in. Until next time, from all of us here, it's wishing you goodbye.